महला दूजा। ए जग सच्चै की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। इक ना हुक्म समाए लए, इक ना हुक्मे करे विनाश। इक ना भाणै कढ लए, इक ना माया विच निवास। ए पे आख न जापई, जे किसै आणे रास। नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे परगास। ए पे आख न जापई, जे किसै आणे रास। नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे परगास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी आसा की वार दी विचार नूं समझण दा, हिरदे विच वसाउण दा यतन कर रहे गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जन। लड़ीवार चल रही बाणी विचार के अधीन आप जी ने धन धन श्री गुरु अंगद साहब दूसरे सतगुरु पातशाह जी की पावन रसना दे विचों उचारण पावन श्लोक का पाठ सरवण किया है। आसा की वार जी की जो दूसरी पौड़ी है, दूसरी पौड़ी दे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने 3 श्लोक अंकित किए ने। 2 श्लोक धन गुरु नानक साहब पातशाह जी दे ने और तीसरा ये पावन श्लोक है धन गुरु अंगद साहब पातशाह का है। गुरु अंगद साहब पातशाह कृपा कर रहे ने। ये जग सच्चै की है कोठड़ी। संसार की गल करदे हां, जगत की गल करदे हां, धन गुरु नानक साहब पातशाह जी के घर ने साडे उपर एक कृपा की कि जिथे गुरु नानक साहब पातशाह जी तो पहला जितने भी अनमत सन, उन्हां अनमतां विचों बहुती विचारधारा ये सी कि ये संसार कलेश का घर है, ये जगत ये संसार माया दे विच रत्या होया एक ऐसा खूह है जिस विच मनुख डुब के मलीन हो जाता है, नरकां दा भागी हो जाता है। ईसाईयत इस गल नूं कहती है कि परमात्मा ने इवा ते आदम इस्त्री ते मर्द 2 बनाए। वो 2 परमात्मा दे बनाए हुए बगीचे अंदर अपनी जिंदगी बतीत कर रहे सन, पर परमात्मा ने रब ने उन्होंने मना किया सी कि एक खास विशेष तरह के सेब के रुख के उत्तों उन्होंने फल नहीं खाने। उन्होंने फल खाधा, कहते उन्होंने सोझी हो गई, संग शर्म की ज्ञान प्राप्त हो गया। ते परमात्मा ने हुक्म तोड़न की सज़ा सुनाउंदियां होइयां उन्होंने धरती के उपर जगत के उपर भेज दिता कि जाओ हुण तुसी माया दे इस संसार विच अपनी जिंदगी बतीत करो, क्योंकि तुसी ये पाप किया है, हुक्म नूं तोड़िया है। तो ये सीधे जे अर्थ यही समझ पैंदे ने जी कि जीव संसार उत्ते आया अपने कीते कर्मां दी सज़ा भुगतण दे लई। पर यह तो ईसाईयत का
ਮਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਿਨ ਬਣਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਗ, ਇਹ ਜਗਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ, ਕੋਠੀ, ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦਾ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਤ, ਇਹ ਜਗ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਇਸ ਕੋਠੜੀ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਈ, ਅਣਗਿਣਤ। ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਕਈ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
इस जगत विच अपने आप नूं डोब दिता है। हुण ये नुकता समझो, है दोने थावां उत्ते हुक्म, जेड़े गुरमुख उस अंदर समाए जा रहे ने, लीन हो रहे ने, वो भी उस परमात्मा दे हुक्म दे विच ने, ते जेड़े विनाश हो रहे ने, डुब रहे ने, वो भी उस परमात्मा दे हुक्म दे विच ने। हुण आम तौर दे उपर असीं यही पढ़दे हां कि ਉਹਦੇ हुक्म दे विच सुख मिलदा है। वो गल बिल्कुल सही है, पर इत्थे पातशाह कहंदे दोने क्रियावां हो रहीआं ने। ਇਹਦਾ अर्थ समझो, जिवें नदी जिहड़ी है, नहर है, वग रही है, नहर वगदी पई है, दो दोस्त उस नदी दे, उस नहर दे किनारे दे उपर खड़े होए, दोनां ने पानी दे विच छाल मारी। एक ने तैरना सिੱਖਿਆ होया सी, पर दूजे नूं तैरना नहीं सी आउंदा, उहने सिੱਖਿਆ होया नहीं सी। एक पानी विचों तैर के पार हो गया, एक पानी विच डुब गया। नुकता बड़े ध्यान नाल समझो, पानी ते पानी है, जिन्हों तैरना आउंदा सी उसनूं पानी ने पार लगा दिता, जिसनूं तैरना नहीं सी आउंदा, जिसने तैरना नहीं सी सिੱਖਿਆ, उसनूं उसे पानी ने डबो दिता। बच्चा पेपर विच बैठदा है, इक्को ही पेपर सारी क्लास दे बच्चों नूं आउंदा है, ਉਹੀ पेपर कईयां नूं अगली क्लास विच कर दिंदा है, ਉਹੀ पेपर कईयां नूं उसे थां उत्ते रोक दिंदा है, फेल कर दिंदा है। ਉਹੀ पेपर है जिसने उस बच्चे की वडियाई करवाउणी है, ਉਹੀ पेपर है जिसने उस बच्चे नूं नीवा भी दिखा देना। भाव कहण दा इह है कि पानी का कोई कसूर नहीं है, पेपर का कोई कसूर नहीं है। इसी तरह गुरु अंगद साहब पातशाह कहंदे एक ना हुक्म समाए लई, एक वो ने जिहड़े इस हुक्म दे अनुसार समा जांदे हन, लीन हो जांदे ने परमेश्वर दे विच। एक ना हुक्मे करे विनाश, कई वो ने जिन्हां नूं इसे हुक्म दे अधीन जिहड़ा हुक्म है वो डोब दिंदा है, नाश कर दिंदा है, विनाश कर दिंदा है। कारण की है? जिन्हां ने गुरु की सिੱਖਿਆ लई, जिन्हां ने उस्ताद दे कोलों तैरना सीख लिया, उन्हां ने उस पानी नूं पार, उस पानी ने जिन्हां ने गुरु दे कोलों, उस्ताद दे कोलों, ट्रेनर दे कोलों तैरना सीखिया सी, जिहड़े उस्ताद दे कोल बैठे सन, उन्हां दी गल मन्नी सी, मेहनत कीती सी, उन्हां ने उस पानी नूं अपने भले लई वरत लिया। उन्हां ने उस पानी ने उन्हां नूं पार लगा दिता। जिहड़े किसी उस्ताद कोले नहीं गए, जिन्हां ने तैरना नहीं सी सिੱਖਿਆ, उन्हां नूं उस पानी ने डोब दिता। जिन्हां ने पढ़ाई कीती सी, मेहनत कीती सी, उस पेपर ने उन्हां नूं अगली क्लास विच पहुंचा दिता। जिन्हां ने पढ़ाई नहीं सी कीती, मेहनत नहीं सी कीती, उन्हां ने उस पेपर ने उन्हां नूं नलायक अखवा दिता, नकम्मे अखवा दिता। कसूर पानी का नहीं है, कसूर उस पेपर का भी नहीं है। इस तरह कसूर परमात्मा के हुक्म का नहीं है। जेड़े गुरु के बचनों नूं मन लैंदे ने, जेड़े गुरु के बचनों नूं समझ लैंदे ने, जिंदगी विच चंगे कर्म की कमाई कर लैंदे ने, उन्हां लई इह जगत पार उतारा बन जाता है, चंगा बन जाता है। जेड़े गुरु दे कोले नहीं बैठते, जिन्हां ने गुरु की गल नूं मन्निया ही नहीं, सुनिया नहीं, उन्हां लई इह जगत नाशता का कारण बन जाता है। एक ना भाण कढ लए, एक ना माया विच निवास। एक ना कई ऐसे हन जिन्हां नूं अपनी रजा अनुसार माया दे मोह विचों
परमात्मा ने कढ़ दिता है। एक ना भाणे कढ़ लई। कई ऐसे जीव ने जिन्हां नूं भाणे दे विच रहिंदियां होइयां परमेश्वर ने इस माया दे मोह विचों कढ़ दिता है। एक ना माया विच निवास। कईयां नूं परमात्मा इस माया दे मोह विच फसाई रखदा है दोने पासे परमात्मा दा कानून, दोने पासे परमात्मा दा हुक्म ही है। हुण असीं गुरमुखो ये कहांगे कि जिन्हां नूं परमेश्वर ने कढ़ लिया उन्हां उपर ते परमेश्वर दा हुक्म चलदा पिया, पर जिहड़े डुब गए ने वो तां हुक्म तो बाहर ने तां डुबे ने। नहीं, वाहिगुरु परमेश्वर जी दा एक हुक्म है। किहड़ा हुक्म है? जैसा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। जिहो जे कर्म कमाएगा फल तेनू ओ जा मिलना है। जे कोई पार हो रहा है तो उहदा हुक्म सी, मेहनत करेगा तो पार हो जाएगा। जे कोई डुब रहा है तो यह भी उस परमात्मा का निज़म है, कानून है कि जे मेहनत नहीं करेगा तो पार नहीं हो सकता। ओदी रजा है दोनों पासे रजा ही ओदी। एक ना भाणे कढ़ लई, एक ना माया विच निवास। ए पे आख न जपई, जे किसै आने रास। बड़ा कीमती बचन है गुरु अंगद साहिब पातशाह का। ए पे आख न जपई, ए गल भी आखी नहीं जा सकी दी। ये गल भी पूर्ण तौर के उत्ते कही नहीं जा सकी दी। जे किसै आने रास, कि रब किस दा बेड़ा पार लगावेगा। रास का अर्थ है किसी नूं सफलता मिलेगी। इस संसार विच किसने डुब जाना है, इस संसार सागर की माया विचों किसने उभर जाना है, ये पक्के तौर ते गल नहीं कही जा सकती। हुंदा गुरमुखो कई बार बहुते धर्म के कर्म करने वाला मनुख, बहुते भेखां वाला, बहुते धर्म के पहरावियां वाला, बहुता जबान विचों राम राम कहण वाला डुब जांदा है। कई बार सीधी सादी जिंदगी बतीत करने वाला संसार तो पार हो जाता है जी। इतिहास की घटना मैं तुहाडे नाल जरूर साझी करनी चाहुंदा है। धन गुरु कलगीधर सतगुरु पातशाह जी के दर दा एक सिख है जिहदा नाम है भाई नंद चंद। गुरु घर विच इन्ना सत्कार है इस नंद चंद का कि जदों गुरमुखो सिखां ने आनंदपुर साहिब की धरती ते आउणा ते जाके बेनतियां नंद चंद नूं करनियां, नंद चंद जे तुहाडी किरपा हो जावे साडा मिलाप गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नाल करवा दे। नंद चंद दे कोल लोग फरमाइशां लैके जांदे सन कि गुरु साहब दे नाल मिलाप साडा करवा दे। गुरु साहब पाउंटा साहब की धरती ते जांदे ने, नंद चंद सतगुरु पातशाह दे नाल नाल चलदा है। गुरमुखो आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते बड़ी इज्जत, बड़ी वडियाई, बड़ी शोभा है नंद चंद की, क्योंकि नंद चंद सारा दिन गुरु कलगीधर पातशाह के नज़दीक रहिंदा है। एक गुरु घर दे सिख ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का संपूर्ण ग्रंथ अपने हथीं लिखिया, अपने हथीं कई सालां की मेहनत की। कई सालां की मेहनत तो बाद वो आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु की बाणी का स्वरूप लैके पहुंचा है। सिखां ने क्या, सिखां नूं बेनती की कि मैं गुरु साहब जी की, गुरु कलगीधर पातशाह की इस बाणी के ग्रंथ साहब के उपर सही पवानी है, मैं दस्तखत करवाने ने, तां जो गुरु की मोहर लग जाए, गुरु साहब के दस्तखत हो जाएंगे ते मेरा ये आदि ग्रंथ साहब की बाणी का स्वरूप प्रवानत हो जाएगा, जिन्हों असीं कहने मानता मिल जाएगी। वो नंद चंद के कोले पहुंचा। नंद चंद नूं कहन लगा, नंद चंद जी तुहाडा धन्नवाद होवेगा जे इस गुरु ग्रंथ गुरु के बाणी की स्वरूप के उपर तुसी गुरु साहब के दस्तखत, गुरु साहब की सही पवा देवो।
नंद चंद ने क्या ग्रंथ मेरे कोले रख जाओ, मैं ये काम करवा देंगा। उसने गुरमुखो बाणी का स्वरूप नंद चंद नूं दे दिता। सिख 2 दिन बाद आया, फिर 4 दिन बाद आया, फिर हफ्ते तो बाद आया, ते हाथ जोड़ के बेनती, नंद चंद जी किरपा करो, अड़े तक तुसी मेरा काम पूरा नहीं किया, मैं दूर दा रहन वाला हाँ, वापस अपने घर भी परतना है, जल्दी तो जल्दी गुरु साहब जी की सही दस्तखत मेरे लिखे हुए ग्रंथ उपर करवाओ। गुरमुखो नंद चंद बहाने मारदा, अज करवावांगा, कल नूं करवावांगा, गुरु साहब दौरे ते चले गए ने, इन्हां दे बहाने मारदा। पर असलीयत ये सी कि अंदर तो नंद चंद दा मन बेईमान हो चुकिया सी। उहदा मन सी कि किन्ना चंगा होवे ये बाणी दा स्वरूप मेरे कोल ही रह जावे, इस मैं ही रख लवां, तां जो संगतां मेरे घर आउणगियां, मत्था टेकिया करनगियां ते मेरे घर दौलत आउणी शुरू हो जाएगी, धन आउणा शुरू हो जाएगा। 1.5-2 महीने का समा लंघिया। सिख ने फिर वापस परत के बेनती की, मैनू किन्ने महीने हो गए ने आया होया, आप सही पवा के दो, मैं वापस जाना है। नंद चंद ने कहा केड़ा ग्रंथ, केड़े दस्तखत, चेता कर मैं गुरु साहब के नज़दीक रहन वाला वां, गुरु साहब मेरी गल ते भरोसा करते ने, जे तू चंगी भली इज्जत मान बचाउणी चाहुणा ते ग्रंथ नूं भुल के वापस अपने घर चला जा, ना दस्तखत तेनू होने ने, ना मैं तेन करवा के देने ने, ये ग्रंथ मैनू पसंद आ गया, अड तो बाद मेरा हो गया है, इनू भुल जा ग्रंथ नूं। गुरमुखो वो किन्ने सालां दी मेहनत सी, उहनूं अत दा दुख होया, पर मैनू निमाणे नूं कौन जानदा है, गरीब नूं, ये तां गुरु दे नज़दीक रहन वाला है। इन्ना कह के मन उदास हो गया, वापस आ गया। जिथे टिकाणा कीता सी आनंदपुर साहिब की धरती, उत्थे सारा दिन बैठा रहिंदा, लंगरां दी सेवा करदा, पर मन उदास है। एक दिन सड़क के किनारे उत्ते नीवी पा के ये बैठा है, धन गुरु कलगीधर पातशाह ने इहदे मोढे ते आके हथ रखिया, कहन लगे सिखा मन उदास है, हथ जोड़ के चरनी पै गया। गुरु कलगीधर पातशाह, गुरु पातशाह बिल्कुल तुसीं सही बुझिया है। पातशाह कहंदे दुख की है, इहने गुरमुखो सारी जिहड़ी कहानी सी गुरु कलगीधर पातशाह नूं सुनाई। किन्ने वार नंद चंद दे कोले गया, किहड़ियां मिन्नतां कीतियां, नंद चंद ने किहड़े किहड़े कौड़े शब्द हंकार भरे कई। एक एक गल सी जिहड़ी सारी गुरु पातशाह नूं बयान कीती। सतगुरु पातशाह ने सिखां नूं कोल बुलाया, कहन लगे नंद चंद दे घर जाओ, जाके उहनूं कहो कल सवेरे अंम੍ਰਿਤ वेले दे दीवाना विच आप भी हाज़र होवे, गुरबाणी दा स्वरूप भी लैके आवे, असीं ओदी कीती दी सज़ा उहनूं देवांगे। गुरमुखो सिख नंद चंद दे कोले पहुंचे, गुरु कलगीधर पातशाह सुनेहा सुनाया कि नंद चंद गुरु पातशाह ने कल दरबार बुलाया है, जेड़ा तू बाणी दा स्वरूप लुको के बैठा है उस गुरु दे कोले पहुंच गया, तेरी शिकायत पहुंची है। गुरु पातशाह ने क्या तेनों भरे दरबार सजा मिलेगी। जो नंद चंद गुरु इन्ना सुनिया, पर फिर भी कई बार बंदा क्रोध विच हंकार विच इन्ना क मलीन हो जाता है, वो गलतियां ते गलतियां करदा तुरिया जाता है। गुरु भला सी गुरु पातशाह दे दरबार हाज़र हो जाता, पर होया नहीं। रात का समा होया, गड्डे दे उपर गुरु सा स्वरूप रखिया, गड्डे ते आप बैठा ते आनंदपुर नूं त्याग दिता जी। आनंदपुर तो भज तुरिया, कई दिनों का सफर तय किया ते करतारपुर साहिब की धरती के उत्ते आ गया। जलंधर के कोले पैंदा है, जिहड़ा गुरु अर्जन साहिब पातशाह ने करतारपुर वसाया जलंधर के कोल, इत्थे बाबा धीरमल रहिंदा सी। धीरमल दे कोले आ गया जी, ते आके करतारपुर तो बाहर टिकाणा कीता, अपना गड्डा रोक लिया।
ते जाके धीरमल नूं सुनेहा भेजिया भी गुरु घर दा बहुत वड्डा विद्वान लिखारी, हर गल विच गुरु साहब उहदी सलाह लैंदे ने। नंद चंद धीरमल तुहाडे दर्शन करने चाहुंदा है। नाल इह सुनेहा कल्लिया अपने सेवक नूं भेजिया नाल कि जाओ जाके धीरमल नूं कहो कि गुरबाणी दा स्वरूप मेरे कोल है, ਇਹ ਸਰੂਪ मैं ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। संगतां ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। मैं जिवें संगतां आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह दे कोल आउंदियां ने, मैं उस तरह संगतां करतारपुर दे विच धीरमल दे कोल आउण ला दिआंगा। ये सुनेहा भेजिया जी। धीरमल दे आसे पासे भी उहदे लोग रहिंदे सन लोग ਜਿਹੜੇ 24 घंटे ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ करके अपने पेट की पूर्ति करते सी। ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ जाके सुनेहा मिलिया, ਧੀਰਮਲ ਦਾ मन खुश हो गया भी गुरु घर का वड्डा विद्वान ते स्वरूप लैके मेरे कोले पहुंचे। कहन लगा जाओ जाके स्वागत नाल जी आया कह के लैके आओ। पर गुरमुखो जिहड़े नाल दे मसंद सन, उन्होंने कहा धीरमल पागल हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना खतरा सी। इन्ना वड्डा सियाणा विद्वान जे धीरमल दे कोले आ गया, सानू किसने पुछना है, साडी इज्जत घट जाएगी। उन्होंने कहा धीरमल तू पागल हो गया, जेड़ा गुरु घर विच इन्नी शोभा पा के बैठा तेरे कोले की लैन आएगा। ये गुरु गोबिंद सिंह की चलाकी है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने चलाकी नाल साजिश करके तेरे कोल भेजिया नंद चंद नूं। वक्त पा के लुट के लै जाना है, वक्त समा पा के उन्हें हो सकता सानू मार के चला जाए। इस करके धीरमल इहदे विच चेता करी, साजिश है बहुत वड्डी, गुरु साहब की कोझी चाल है। धीरमल कहंदा फिर करना की चाहिए, ते नाल दे कहंदे ने धीरमल जिहड़ी चलाक बंदियां नाल होनी चाहिए उही होनी चाहिए है। धीरमल कहन लगा फिर आउण दे। अन्ना दा कच्चा सी जी। गुरमुखो गड्डे ते सवार सुरप रखा गुरबाणी दा, ड्योड़ी दे सामने पहुंच गया धीरमल दे। नंद चंद दरवाजे अंदर प्रवेश किया। दरवाजे लंघ के अगे खुला वेड़ा सी। खुले वेड़े दे पार अगले पासे हवेली सी वड्डी। उहदे उत्ते धीरमल अपने मसंदां दे नाल बदूखा तन खड़ा होया सी। जदों बिल्कुल विचकार नंद चंद आया, धीरमल दे मन विच बिठा दिता सी कि गुरु ने भेजिया होया है, चलाकी करके आया। ताड़ ताड़ करदियां गोलियां चारे पासों चलियां। नंद चंद नूं अगे ते छलनी कर दिता। बस कुछ पड़ लगी तो नंद चंद दे श्वास निकल गए। ये कह लो कि गुरु तो दूर भज्या, गुरु तो दूर होया ते गुरमुखो अंत दी बुरी मौत मरिया ते ग्रस लिया मौत ने। ये कह लो भी काला मुंह करवा के संसार तो गया। जिन्हों सियाणे ने कहा मूसा भज्या मौत तो अगे मौत खड़ी। इसलिए देखो कोई सोच सकता भी जिस नंद चंद नूं पुछ किस गल्लां करदे सन, जिस नंद चंद की वड़ियाई हुंदी सी गुरु घर दे विच, वो नंद चंद इन्नी भैड़ी मौत मरेगा किसी ने नहीं सी सोचिया। पर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे ए पै आख ना जापई, की कोई आख सकता है। ये गल गुरमुखो कही नहीं जा सकती, आखी नहीं जा सकती। जे किसै आने रास कि सच्ची गल यह है कि रब किस दी बेड़ी पार करेगा, किस दी बेड़ी डुबेगी, कहा नहीं जा सकता। नानक गुरमुख जानिए, हे नानक जिस वड भागी नूं जाको आप करे परगास। गुरु अंगद साहिब पातशाह कहंदे हे नानक जिस वड्डियां भागां वाले मनुख नूं गुरु चानण बख्शदा है, आप करे प्रगास। वो गुरु जी आप प्रकाश करते ने, चानण दिंदे ने, ज्ञान मत बख्शिश करते ने। उसनों ही गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि संसार तो किहड़े कर्मां नाल पार होना है, किहड़े कर्मां ने मैनूं डूब देना है। ये समझ गुरु दे
ਇਹ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ